हाउ आर यू? घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी taking care of yourselves and your studies and moving on very confidently ahead for ready to face all the Olympiads, all the exams. ठीक है? If you are not, buck up. Still, it is not late. You should be doing self-study now a lot. The foundation for your career has been laid in the 9th standard. So please start working. Till for now, welcome back to yet another lecture in biology, and we have been discussing natural resources, and it is simple. We have discussed about air pollution and various air pollutants. We have discussed about acid rain, we've discussed about ozone depletion, we have also discussed about various things related to air pollution, CFCs, global warming, greenhouse effect, all of that. Now today we would be talking about water pollution of water, and water is a very important resource for living organisms. आप जानते ही होंगे, without water life is not possible on earth. Every form of life requires water. Water का importance अगर कहें तो there are so many which you can consider to be the importances of water. For example, water is the basic need of human beings. Without food you can go for some days, but without water you can go with a very difficulty. अगर few days का सोचे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है? So water is a very important resource. It is their end product of respiration. हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो उसका एंड प्रोडक्ट भी एक वाटर है, CO2 भी है. एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल हैज 70% ऑफ वाटर. जो साइटोप्लाज्म है वो सब कुछ वाटर से ही तो बना हुआ है. अब ब्लड में प्लाज्मा जो है, आपने देखा होगा, प्लाज्मा हैज 90% वाटर. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स टोटली आर डिपेंडेंट ऑन द water. Water is a universal solvent also, useful to dissolve various things, right? So it has a very big role to play in life of organisms on the earth. ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है. यू कैन गो ऑन एंड ऑन राइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए. आज हम डिस्कस करते हैं लिटिल अबाउट how water is available on earth and what are the various ways in which water is being polluted. Specifically, we will also talk about biological oxygen demand. We would talk about biological oxygen demand, that is BOD. We would talk about eutrophication. We would talk about biomagnification. ये terms आपको आनी चाहिए जो कई बार पूछी जाती है. ठीक है? So let us start about water. Excuse me for a minute. Let me start the timer so that I don't exceed your time limit. Okay. So let us start about water. Water on earth is present. बहुत ज़्यादा major portion of earth is covered by water. Land से भी ज़्यादा water है. लेकिन वो water is not, all types of water is not useful for life. Water को अगर अपन देखें तो it is of two types. One is fresh water resource. Second is salt water. And as you know, this salt water is present in oceans, in seas, etc., and this is not suitable for drinking purpose. This water can be used for generating electricity and other things, but not used as potable water. Potable water, what is potable water? Water which is capable of being used as a drink. पीने वाले पानी को, जो पानी
पीने के लायक है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. सो सी वाटर इज नॉट पोर्टेबल वाटर. ज्यादातर हमारे काम आता है जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनका पानी. ठीक है. सो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? जैसे रिवर्स हो सकती हैं, पॉन्ड्स हो सकती हैं. ठीक है. रेन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. तो फ्रेश वाटर वो पानी है जो हम पीने में काम ले सकते हैं और विच इज यूजफुल टू सस्टेन लाइफ. ठीक है. दिस फ्रेश वाटर कहाँ से? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर, potable water, drinkable water without which life cannot exist. Where do we get that fresh water from? ये 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज से अवेलेबल है. फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. So let us talk about fresh water resource. Fresh water resources are 3. One is rain water. और रेन वाटर आप जानते हो दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रेन वाटर के अकॉर्डिंग कई जगहों पे एरियाज को भी क्लासिफाई किया गया. देर आर 4 टाइप्स ऑफ रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जैसे कुछ तो हाई रेनफॉल वाले एरिया है, कुछ इंटरमीडिएट जोन्स होते हैं. इंटरमीडिएट जोन वो होता है जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है बट नॉट वेरी हाई अमाउंट. जैसे चेरापूंजी वगैरह आपने सुना होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है. दैट कम्स इन हाई वाटर हाई रेनफॉल एरिया. सम एरियाज कम इन इंटरमीडिएट जहाँ पे अच्छी होती है. सम एरियाज कम, सो यू कैन राइट सेमी एरिड. सेमी एरिड, दिस वर्ड आई एम राइटिंग बिकॉज it would be new to you. This arid is used for dry conditions. Semi arid मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सूखा प्रदेश है बट बारिश कम होती है. एंड देन कम्स द एरिड रीजन्स. एरिड रीजन्स बिल्कुल ड्राई रीजन्स है. फर्स्ट अगर क्लासिफाई करें तो हाई रेनफॉल, सेकेंड होगा intermediate rainfall areas, semi-arid areas, which are there, and areas totally dry areas. ठीक है. So this semi मतलब not totally but dry areas, and this arid region, this is the 4th region classified on the basis of rainfall, that is arid region which has almost negligible amount of rainfall. वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. that is a very negative point for that area. वहाँ पे crops कम होंगे. people would be facing difficulties in summer because water dries away, right? So these areas are considered classified according to the amount of rainfall they receive. Second source of fresh water is surface water. Excuse me. Surface water. Surface water is what? Rivers, ponds. These are sources of surface water. और third होता है ground water. This is also very important. This is ground water. This ground water is the water which is below the soil. हमारा जो ground होता है उसके नीचे अगर हम चलना डिग करना स्टार्ट करें तो एक एरिया ऐसा आता है वहां पे सैचुरेशन ऑफ वाटर है. वहां पे आपको वाटर का रॉक्स वगैरह जो है वो सारे वाटर से गीले होंगे, कवर्ड होंगे. सो दैट इज सैचुरेशन जोन. सैचुरेशन जोन जहां पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राउंड एंड हियर देयर आर रॉक्स. यू अपन सॉइल प्रोफाइल आप पढ़ भी चुके होंगे और देखेंगे. हियर देयर इज मड एंड ऑल. यू गो ऑन डिगिंग डाउन हियर. द एरिया वेयर these rocks would have water, this is the saturation zone. ठीक है, this is the saturation zone.
एंड द अपर लेयर ऑफ सैचुरेशन जोन इस, ये पूरा जोन क्या है, सैचुरेशन जोन है. अपर लेयर ऑफ दिस और द अपर पार्ट ऑफ दिस सैचुरेशन जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल. क्या हुआ, हम नीचे चलने लगे, वी स्टार्टेड डिगिंग, एंड आफ्टर डिगिंग वन एरिया कम्स वेयर यू फील इट इज वेट, द रॉक्स आर ऑल कवर्ड विद वाटर, एंड देयर इज, उससे जो नीचे का एरिया जहां तक पानी मिलता है दैट इज सैचुरेशन जोन. उस सैचुरेशन जोन का टॉप मोस्ट लेयर जहां पे वो जस्ट स्टार्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड द वाटर टेबल. और ये जो एरिया है जहां से अपन ने, दिस वाज द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे जहां तक हमें वाटर सैचुरेशन जोन मिला दैट इज कॉल्ड वाटर लेवल. ठीक है, सो दिस वाटर लेवल, यू माइट हैव हर्ड प्रैक्टिकली पीपल डिस्कसिंग कि वाटर लेवल थोड़ा सा डीपर है, वाटर टेबल इज नॉट वेरी हाई, जोन ऑफ सैचुरेशन वेरी डीप. तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये डिग करने में बहुत दिक्कत आती है. पीपल दे सी दिस वाटर लेवल एंड देन डिग. अगर कुछ एरियाज होते हैं जहां पे जल्दी से पानी आ जाता है, दैट मेक्स वर्क easy when people are digging wells to for agriculture purpose and other things. Some villages also have wells for drinking, and this water, ground water जो होता है pure form में होता है because वो नीचे जाते जाते almost filter हो जाता है, and there is no possibility of any waste being put in ground water because जैसे surface water, rivers है, ponds है, उन पे sewage can be dumped or clothes can be washed, various reasons of pollutions are there, but ground water is one kind of water जो बहुत less pollute हो सकता है. why? because direct addition of pollutants is not there in ground water. इसीलिए कहते हैं जो well में पानी आता है that is also because of this, it is not very polluted. हालांकि ऊपर से आप डाल सकते हो well में, लेकिन जो नीचे से आ रहा है that is a cleaner water compared to water of rivers etc. ठीक है, so these are the sources of fresh water, and we have already talked about the importance. Ocean seas are the sources of salty water which is not suitable for life. ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं ये वाटर का पॉल्यूशन होता कैसे है. लेट अस टॉक अबाउट वाटर पॉल्यूशन. My marker is not working properly. I hope you can see it, what I'm writing. Let us talk about water pollution. Water pollution can be done by various methods. एक तो होता है household waste. Household waste जो होता है, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे हम क्लोथ्स वॉश करते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें, सोप होता है उसमें, दे कंटेन वेरियस केमिकल्स. और अगर ये किसी तरह से फ्रेश वाटर के अंदर चला जाए, यू मस्ट हैव सीन इन मेनी प्लेसेस विच आर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, वहां पे द washer people, washer women or washer men go and wash clothes there only, and the detergent is going in the river, and this detergent contains various chemicals जो बहुत दिक्कत देते हैं. एक ABS है, alkyne benzene sulfonate. This is a water pollutant which is not biodegradable. अब ये डिटर्जेंट से वेरियस केमिकल से चला जाता है पानी में एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इट कॉजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ये आपको स्कूल एग्जाम्स में याद नहीं रखना, लेकिन व्हाट इज ABA, अगर रिलेटेड क्वेश्चन ABS सॉरी रिलेटेड टू पॉल्यूशन हो तो इट इज अ वाटर पॉल्यूटेंट, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. ठीक है, तो ये हाउस होल्ड वेस्ट से हो सकता है. सो इसका क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट पे क्या करते हैं, कई बार इस चीज़ों को प्रेसिपिटेट, ये जो केमिकल्स हैं इनको प्रेसिपिटेट करवा के रिमूव किया जाता है. उसके बाद दैट वाटर विच इज पुट इन द रिवर्स इज सेफर. जैसे लाइम भी डाला जाता है, फेरिक क्लोराइड्स भी डाले जाते हैं, जिरकोनियम भी प्रेसिपिटेशन में काम आता है. दीज आर केमिकल्स विच हेल्प इन reducing water pollution because they help the chemicals to precipitate. ठीक है, कंट्रोल के मेजर से. अब सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज सीवेज. आप जानते हैं सीवेज जो वेस्ट
फ्रॉम हाउसेज है या टाउन्स है या विलेजेस है जिसपे हर टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है, एनिमल वेस्ट है, ऑल काइंड ऑफ वेस्ट इज देयर, इट इज व्हेन इट इज गोइंग इन वाटर तो इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और सीवेज में क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर विच इज अवेलेबल फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ऑफ दैट द माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी हाई। माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत हाई है अमाउंट, तो वो वाटर इज वेरी पॉल्यूटेड। और इसको मेजर करने के लिए जैसे गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च किया गया था, बिकॉज गंगा वॉज हाईली polluted. It was not even safe to bathe with that water. It was found that, leave alone drink, and people, it is considered holy, so they were taking it, so that was very bad. तो गंगा एक्शन प्लान लॉन्च करना पड़ा था 1985 में to control the pollution of गंगा। अब कैसे देखा जाता है pollution of a river? There is a indicator called BOD. This is biological oxygen demand. This is biological oxygen demand. Biological oxygen demand, BOD क्या बताता है? It is an indicator of water pollution due to microbial activity. जिस वाटर की BOD बहुत हाई होती है, that water is very highly polluted. Why? Biological oxygen demand by living organisms जब high है तो that means that water is having high amount of living organisms like microorganisms like bacteria, fungus, etc. They want oxygen for their body processes to go on, and that is why उस water की biological oxygen high चली जाती है. So BOD is an indicator of water pollution. और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे एक डैफनिया है, सो बीओडी यू शुड नो व्हाट इज इट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इंडिकेट्स वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. एक डैफनिया है, आई यूज अनदर मार्कर ओनली. देयर इज वन व्हिच इज डैफनिया. This is an organism belonging to Arthropoda group. Which group? Arthropoda. Arthropoda आपने पढ़ा नहीं है. क्रैब आप जानते हैं, मस्कीटो आप जानते हैं, जिनके फीट होते हैं jointed to the body, उनको आर्थ्रोपोड ग्रुप में डाले जाते हैं. स्मॉल क्रस्टेशियंस, ट्रांसपेरेंट कलर के छोटे छोटे, यू कैन रिलेट विद क्रैब जो होता है ना, उस टाइप के छोटे से बहुत माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन है. प्लैंकटन मतलब बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है, वो है डैफनिया. और वो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता. सो जब किसी वाटर की डैफनिया की कंटेंट कम होती है, इट इंडिकेट्स दैट वाटर की बीओडी हाई है या वाटर हाईली पॉल्यूटेड है. सो सम फिशेस एंड डैफनिया बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, जैसे SO2 pollution के lichens वगैरह होते हैं, they do not grow in that area. So that is about sewage. अब third जो होता है, third thing which is industrial waste. Industrial waste आप जानते हो various chemicals या oils या harmful toxic gases या सब कुछ water के अंदर release कर दिया जाता है, and that causes various problems. For example, एक आपको मैं example दूँ, there is a Minamata disease. Minamata disease. ये actually this name of this disease is from a town in Japan, Minamata. और उसमें कई लोगों, some people suffered with this disease, and this was due to mercury pollution. Mercury pollution. When how this mercury came into the water, the mercury, because of industrial waste, mercury का content water में बढ़ गया, वो mercury fishes ने खाया. Obviously people don't go and drink polluted water, लेकिन that water, that mercury was in the body of fishes, and when people had those fishes, it went to their body and caused various diseases, nervous diseases. It could
हाईली लीड टू डेथ ऑल्सो समटाइम्स, ठीक है ना। तो ये डिजीज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल हैजर्ड देखी गई है, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। और कौन सा केमिकल? मर्क्यूरी, याद रखना, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी क्या किया, should not directly be put in the water, उसको पहले लेस टॉक्सिक केमिकल रिएक्शन की वजह से लेस टॉक्सिक बना के फिर डालना चाहिए रिवर्स वगैरह में, सो दैट इट इज नॉट वेरी हार्मफुल, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट गो इन वाटर, तो उसका एक उससे रिलेटेड टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल और बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अबाउट मर्क्यूरी। वैसे ही मान लो एक फूड चेन होती है, आप जानते हो फूड चेन प्लांट्स से स्टार्ट होके वेरियस ऑर्गेनिजम्स तक जाती है। सो इफ फॉर एग्जाम्पल दैट इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड या वेस्ट कोई भी वाटर के अंदर है, वो प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की बॉडी में जाएगा, that plant would be eaten by a herbivore, that herbivore would be eaten by a carnivore, and then the food chain would end. अब every level of a food chain, जैसे छोटा सा प्लांट है, उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर और ओमनीवोर कह सकते हैं, और दूसरा कार्निवोर, जैसे यहाँ पे प्लांट ले लिया, जू प्लांट, छोटा सा माइन्यूट क्रस्टेशियन हो गया, उसको फिर स्मॉल फिश ने खाया, उसको लार्ज फिश ने खाया, उस फिश को ह्यूमंस ने खाया, तो ये चेन ऐसी चलती जाती है। इस चेन में द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड और द परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीजेज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। अब आप कैसे सोचोगे कि ये कैसे इंक्रीज हुआ? एक प्लांट में था, इस प्लांट को 2-3 फिशेज ने खा लिया, तो 2-3 फिशेज वर ईटन बाय some many organisms and then by humans later on. सबकी बॉडी में थोड़ा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड था, लेकिन it was distributed in all the cells of that body. तो नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, वैसे नंबर और परसेंटेज ऑफ दैट pesticide increases. So this increase in amount of a harmful chemical at every trophic level. Trophic level क्या है? हर level of a food chain. That is called biological magnification. You can write what is biomagnification? The increase in percentage of a harmful chemical, increase in percentage of a harmful chemical at every trophic level is called biomagnification. ठीक है। और एक DDT एक हार्मफुल पेस्टिसाइड है, मैंने बताया था आपको, ये भी जब प्लांट्स के ऊपर छिड़का जाता है तो प्लांट्स उसको ले लेते हैं, वो प्लांट को हर्बीवोर खाते हैं, सेम उसका अमाउंट बढ़ता जाता है और ह्यूमंस बिकम द मोस्ट बैडली इफेक्टेड, ठीक है ना। वो सडन पता नहीं चलता, लेकिन सेल्स उस टाइप से बनते हैं तो लेटर ऑन उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस टर्म्स विच आर रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। अब ये मैंने सीवेज की जब बात की थी, एक चीज आपको बताऊं, सीवेज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एक ऑक्सीडेशन चेंबर बनाया जाता है, पूरा सीवेज उस चेंबर में डाला जाता है, और क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, तो बैक्टीरिया और एल्गी भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ग्रो कर जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है चीजों को डिकम्पोज करते हैं, है ना, डिकम्पोज, डिग्रेड, अपना खाना लेने के लिए, और CO2 रिलीज करते हैं। दैट CO2 इन टर्न इज टेकन अप बाय द एल्गी। तो कई बार तो ये डेलिबरेटली जानबूझ के डाले भी जाते हैं। दैट CO2 इज टेकन अप बाय एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, एंड देन दोस हार्मफुल बैक्टीरिया आर किल्ड बाय वेरियस अदर मेथड्स इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, सो दैट वाटर बिकम्स लेस पॉल्यूटेड। ज्यादातर फिर जो वाटर सीवेज वाला सेडिमेंटेशन भी करते हैं, उसको एक जगह खड़ा रहने देते हैं, जो भी हैवी वेस्ट है वो नीचे चला जाता है, उसके बाद वाटर को डाला जाता है इन द ऑक्सीडेशन चेंबर, और वहां पे बैक्टीरिया एल्गी ग्रो करेगा, तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो होगा, एंड देन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू वेरियस केमिकल रिएक्शंस किल कर दिए जाते हैं, एंड देन वाटर बिकम्स लेस polluted. That is a way of controlling sewage polluted water. ठीक है।
So these are the things which you should know related to water pollution. अच्छा, एक और टर्म है eutrophication. What is eutrophication? Eutrophication means जैसे फील्ड में कोई भी और फार्मर वर्क कर रहा है और फर्टिलाइजर डाल रहा है. फर्टिलाइजर वो क्यों डालता है? ताकि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो जाए. ठीक है. अब मान लो रेन के साथ या किसी विंड के साथ या ये सॉइल विच कंटेन्स फर्टिलाइजर इज गोइंग इनटू द वाटर बॉडी. किसी पास में वाटर बॉडी है, उसमें चला गया मैं, तो अब फर्टिलाइजर वाटर प्लांट्स को भी मिलेगा. और वाटर प्लांट्स ज्यादातर क्या होते हैं? एल्गी होते हैं. ठीक है. तो एल्गी को तो बैठे बिठाए अच्छा खाना मिला फर्टिलाइजर से, तो उनका अमाउंट बढ़ गया. जब उनका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम. डू यू अंडरस्टैंड? आई एम एक्सप्लेनिंग यूट्रोफिकेशन. Eutrophication is due to spraying of fertilizer, adding of fertilizers to field. When that washes away into the water body, it increases the growth of algae because algae को nutrient मिलता है through fertilizer और वो bloom कर जाते हैं, बढ़ जाता है उनका amount. So we say there is algal bloom. Now what will happen? Algae will cover the water और ठीक है, sun rays कम जाएंगे तो नीचे organisms हैं, वो एक उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा. दैट इज वन पॉइंट. बट एक चीज ध्यान रखना, एल्गी इज द प्रोड्यूसर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन ऑन अर्थ. तो एल्गी तो खुद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिल जाता है. लेकिन जैसे जैसे ये एल्गी डाई करता है और डिकम्पोज करता है, CO2 बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ दैट CO2 now that and when it is producing oxygen, उस वक्त बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बैक्टीरिया का अमाउंट भी बढ़ जाता है. नाउ एल्गी विल डाई, रिलीज CO2. अब CO2 जब रिलीज होता है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई, दे डिकम्पोज, देयर इज रिलीज दिस बैक्टीरिया आल्सो, इवन व्हेन दे आर लिविंग, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते जा रहे हैं. दिस कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे, एल्गी है जब तक कंट्रोल हो सकता है, लेकिन धीरे आफ्टर सम टाइम एल्गल सेल्स स्टार्ट डाइंग ड्यू टू वेरियस रीजंस, और दे आर ईटन अप बाय वेरियस फिशेस एंड ऑल. And then what happens? The amount of CO2 increases in that water. As the amount of CO2 increases, oxygen का level down आ जाता है और the fishes and other aquatic organisms can die. So this is eutrophication. Entry of fertilizer, algal bloom, increase in microbial activity, increase in amount of CO2, decrease in amount of oxygen, and ultimately harm to the aquatic life. So that is also effect of water pollution, and this all should be controlled. तो इसीलिए गवर्नमेंट does various things कि पहले डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं डाला जाता है, उसको लेक्स टॉक्सिस करके किया जाता है. डायरेक्टली सीवेज ऑल्सो इज नॉट डिस्पोज्ड, ऑक्सीडेशन चेम्बर्स वगैरह से पास होके उसको डिस्पोज किया जाता है. फैक्ट्रीज को भी नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं so that they do not directly pollute any kind of water resource. So this is about water pollution, water का importance and how excuse me. So we talked about water pollution. अब आपको जनरल क्वेश्चंस किस पे आ सकते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? What is अडाफनिया an indicator of? What is BOD indicating? What is biomagnification? What is eutrophication? तो आपका वर्क ये रहेगा कि आपको इन तीनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखनी है. वाटर, what is importance of water you can write as a general thing. No, you don't need to worry a lot about that. वो आप जानते हैं, वो लिख सकते हैं. What is fresh water source? What is salty water? ये सब आपको ध्यान रखना. फिर what is ground water? What is ग्राउंड वाटर का लेवल आप कैसे इंक्रीज करोगे पूछा जाएगा. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी नाइस वे टू कंजर्व वाटर. रेन वाटर को आप अपने घर में ही इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं. एक टैंक बना के, जो छत से आता है पानी उसको टैंक में करो. व्हेन देयर इज लैक ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग पर्पसेस एटलीस्ट, वाटरिंग प्लांट्स एटलीस्ट. ये भी एक बहुत अच्छा मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ठीक है.
So this was about water as a natural resource and its importance, how it is polluted and what harms it can cause, and certain terms related to water pollution. Now, in the next lecture, we would talk about soil, and then after that, we would talk about the most important part of this chapter, that is biogeochemical cycles. Questions उन्हीं में से आते ज़्यादा, ठीक है? So, till we meet next time, study about water, importance of water and water pollution and terms related to it. Next time हम soil के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Till then, take care. Thank you for listening to me.